Hello students, today in this lecture we are going to discuss the magnetic field due to the current carrying circular loop. Okay. Magnetic field at the center of the current carrying circular loop. Magnetic field at the center of the current carrying circular loop. Okay. Now let us suppose that it is supposed to be the circular loop. Now since we are going to make the passage for the entry and the exit of the current, let us suppose I is the current which is flowing through the circular loop, and this is the centermost point, say O, and at this point O we want to determine the magnetic field due to the current which is flowing through the circular loop. Got it, friends? Now remember one thing, look over here, there is a gap which I had created in the circular loop. This gap is negligibly small. Okay, this gap is negligibly small, that is we have to neglect this gap. Why I had made this gap? It is just for the entry of the current and the exit of the current. That is, I want to avoid the short circuiting of this loop. Okay. Now, what you have to do? As I had already told you, that is, whenever you want to calculate the magnetic field at a point due to any type of current, any type of conducting system which is carrying current, always what you have to do? Always, first of all, we are going to consider the current length element at any point on the conductor. Then using the Biot-Savart law, we are going to determine the small magnetic field at the observation point due to the current which is flowing through this length element. Got it? Now, take a look. Let us suppose say, at this point A, I am marking out the current length element on the circular loop. Now, as the current is flowing this way, so it will leave this point A in this direction, that is the tangential direction. So the tangential direction, it will be the direction of vector dl. The direction of vector dl is tangential. It is tangential at the point A to the loop. Okay. Now, let us suppose say small r is the radius of the circular loop. Now clearly says this angle between the direction of vector dl and vector r. Vector dl and vector r. The distance of this observation point from the position of the current length element is say r, and always we are going to consider vector r. Okay, this angle is 90 degree. Got it? So first of all you have to copy this figure. Copy the figure. Copy it. Now since note down the considerations. Consider the circular loop of radius small r which carries the current I. First off, let vector dl be the current length element at the point A on the circular loop. First off, let vector db be the small magnetic field at the point O due to the current which is flowing through the length element, the current length element vector dl. Okay, now says, according to Biot-Savart law, according to Biot-Savart law, according to Biot-Savart's law, this dB, that is the magnitude of the small magnetic field at this point O, it is equal to say K, the proportionality constant, I dl sine theta divided by r square. Now since from this information, this value for theta, the value for theta is 90 degrees. So this dB is written as say K I dl say sine 90 degrees divided by r square. Now sine 90 is 1. Now sine 90 is 1, then this dB is written as say K I dl
divided by r square. It is the magnitude of the small magnetic field which is produced at this point O due to the current which is flowing through the sector here. Got it? We are going to call this as equation number first. Copy it. Now, write a statement in the next line. I am dictating it. Let vector B be the total magnetic field produced at the center O of the circular loop due to the current I flowing through it. Now, since to calculate the total magnetic field at the point O, what we are going to do? We are going to integrate this expression within the proper limits. In actual, there is no need of putting any limit. You have to just integrate it. Say this B is the total magnetic field at the point O, and in magnitude it is written as integral of dV. Whenever you want to calculate the total magnetic field at the observation point due to the entire conducting system, then always, first of all, you have to calculate the small magnetic field using the Biot-Savart law. We are going to obtain an equation, the expression for the small magnetic field, and then we are going to calculate the total current, we are going to calculate the total magnetic field due to the conducting system, the current carrying conducting system. And in order to do that, we are going to integrate the expression within the proper limits if required. If required. बेटा जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, स्टेट कंडक्टर था, एंगल की लिमिट्स डाली थी, वहां पर एंगल की लिमिट्स रिक्वायर्ड थी. यहां पर क्योंकि सब कुछ कांस्टेंट है इसलिए लिमिट्स की जरूरत नहीं. So since this B is written as integral of say k I dl divided by r square. This B is written as say k I divided by r square, constant. Integral of dl. Integral of dl, it will give you the entire length of the circular loop. Say k I divided by r square multiplied by 2 pi r, the circumference of the loop. R cancelled out. Okay, so since we are left with say B is equals to say k into say I divided by r multiplied with 2 pi. It is the magnitude of the magnetic field. Got it? And the direction of the magnetic field is determined using right-hand rule. I am giving you a simple shortcut, that is the reduced form of right-hand rule to determine the direction of the magnetic field. It will hold only in the case of the circular loop or the circular sections. Clear? Direction of vector B. देखिए बेटा, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो करे, आप लूप को देख रहे हैं, लूप का कोई भी प्लेन है, लूप जिस प्लेन में है, तो जब आप लूप को देखेंगे या तो करंट क्लॉकवाइज दिखाई देगा या एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा. अब बेटा अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में दिखाई दे तो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप एंड आउटवर्ड, दैट इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और टुवर्ड्स द रीडर. समझ गए बात को? द करंट फ्लो is anti-clockwise. If the current flow is anti-clockwise, then the magnetic field is perpendicular to the plane of the loop. And in the outward direction. That is towards the reader. रीडर वो जो देख रहा है, ऑब्जर्वर. पल्ले पड़ गई बात? कॉपी करें जल्दी से. और अगर बेटा याद रखे करंट फ्लो इज इन क्लॉकवाइज सेंस, then the magnetic field is perpendicular
to the plane of the loop and inward, that is away from the reader. Got it? Copy it. And remember one thing, the same concept of direction of the magnetic field is applied whenever we are talking about the circular sections which are carrying current. Okay? जरूरी नहीं है कि सर्कुलर लूप है, अगर बेटा सर्कुलर लूप की जगह में कर्व्ड सेक्शंस आ जाएं, जैसे 1/4 ऑफ अ सर्कल आ जाए, सेमी सर्कल आ जाए, 3/4 ऑफ अ सर्कल आ जाए, जिनके अंदर करंट फ्लो करे, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एट द सेंटर, खास ध्यान रखें ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेंटर पे है, तो उसके लिए भी ये टेक्निक यूज करें। सिंपल पड़ती है, देखते ही हो जाता है। ठीक है, जल्दी करिए, कॉपी करिए। डन, कॉपी करिए जल्दी से। तो डायरेक्शन की बात समझ आ गई। एक इंपॉर्टेंट केस करते हैं। Cases. Case first is, suppose the loop is replaced by the coil having n turns. नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स हैं n। समझ आ गई बात? और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना निकलेगा? मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा K इंटू N इंटू I डिवाइडेड बाय R इंटू 2π। क्या करना है? सिर्फ नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना है। समझ आ गई ये बात? इतना काम क्लियर हो गया? कॉपी कर लिया? ओके, डन, ओके। Now, the magnetic field at the center of the current carrying circular sections. मान लेते हैं बेटा सर्कुलर सेक्शंस है। Let us suppose that as a conductor in the shape of the circular arc, the center is say O, it carries the current say I, and the conductor is AB. I am saying that the conductor is in the shape of the circular arc. Now students, let us suppose say that at this point C, I am saying that this entire length is the length element. This is the length element say vector dl. Okay, R is the radius. Now clearly students, the smallest possible length, it will subtend some angle at the center of the circular loop. Yes or no? Again, we have to mark out the direction of this vector dl. Let us suppose vector dl is tangential to this conductor. Okay, now what do you have to do? We have to determine the magnetic field at the center say. Okay, copy this figure, copy it. Done. Now in the next line, consider the conductor in the shape of the circular arc which carries the current I. Full stop. Let vector dB be the small magnetic field at the center O of the arc-shaped conductor. Full stop. In the next line, using Biot-Savart's law, this dB is written as say K into say I into say dl into say sin theta divided by R square.
Remember what was the theta? This theta was the angle between the direction of vector dl and the direction of vector r. Vector r. Since take a look, this angle is again equals to 90 degrees. This theta is again equals to 90 degrees. Why? Because बेटा तो मैग्नीफाइड व्यू दिखाई दे रहा है इसलिए थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है. एक्चुअल में तो ये एक पॉइंट है आर्क शेप्ड कंडक्टर के ऊपर, ठीक है, जिसको आपने वेक्टर डीएल बोला था. तो डीएल इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट लेंथ एलिमेंट व्हिच इज एंड द लेंथ इज नेग्लिजिबली स्मॉल. तो देखने में थोड़ा आपको समझाने के लिए किया, ये मैग्नीफाइड व्यू है. सो दिस dB is written as say k into say I into say dl divided by r square. Why? Because sin 90 आएगा, sin 90 आएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं था. sin 90 1 होता है. So the dB is written as say k into say I into say dl divided by r square. Now it is the expression for the small magnetic field. And suppose we want to calculate the total magnetic field now. Now we have to again integrate it. We have to again integrate it within the proper limits. Limit स्क्वायर लगाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी. चलिए एक और काम करते हैं. So इस dl को phi के टर्म्स में कर लेते हैं, ठीक है. स्टूडेंट्स लोअर क्लासेस में आपने सेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है. सेक्टर आर्क लेंथ इज ऑलवेज इक्वल्स टू रेडियस मल्टीप्लाइड विद एंगल. तो बेटा ये जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ है बेसिकली तो आर्क लेंथ है, जिसका लेंथ हमने डीएल बोला था. सो डीएल डिवाइडेड बाय आर इट विल बी इक्वल्स टू डी फाई. सो स्टूडेंट्स वी कैन से दैट दिस डीएल इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड विद डी फाई. dl का वैल्यू उठा के यहां पे डालते हैं. सो दिस dB is written as k into say I into say r into say d phi divided by it is r square. R cancelled out. Okay, now this dB is written as say k, यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, k into I divided by r multiplied with d phi. Now let us call this as the equation number first और equation number first को इंटीग्रेट करें. नेक्स्ट लाइन में लिखें let vector b be the total magnetic field at the center of this arc shaped conductor. Okay, now कॉपी कर लें इसको, जल्दी से पूरे को कॉपी करें, मिटाना है मुझे. डन. अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमने पूरे कंडक्टर को कंसीडर करना है तो यहां पर वेरिएबल है फाई. क्लियर? ये देखिए छोटी आर्क लेंथ थी, उसने एंगल डी फाई सब्सटेंड किया था. मैग्नीफाई करिए तो टोटल एंगल कुछ तो सब्सटेंड होगा. Say I was the current, O was the center. The total angle which is subtended at the center of this arc-shaped conductor, it is equals to say phi. कुछ तो एंगल है. नेक्स्ट लाइन में लिखें let vector B be the total magnetic field produced at the center O of the arc-shaped conductor which carries the current I. So since this B is written as integral of dB again, so this B is written as integral of dB. dB is written as say k into say I divided by r multiplied with d phi. So this B is written as say k into say I divided by r integral of d phi. Integral of d phi, it will give you phi. Say k into say I divided by r multiplied with phi. एंड रिमेंबर वन थिंग इन न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, बेटा जब न्यूमेरिकल्स की बारी आएगी तो ये एंगल 5 डिग्रीज में यूज नहीं करना, इसको हमेशा रेडियंस में यूज करना है, मतलब पाई की टर्म्स में यूज करना है. ठीक है, phi is measured in radians.
ओके, ब्रैकेट में लिख रहा हूं इन टर्म्स ऑफ पाई, नॉट इन डिग्रीज। समझ आ गई ये बात? और बेटा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए वही जुगाड़ जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, करंट एंटी क्लॉकवाइज परपेंडिकुलर टू द प्लेन टुवर्ड्स द रीडर। करंट अगर क्लॉकवाइज होता तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन अवे फ्रॉम द रीडर, दैट्स इट। ओके, कॉपी करें जल्दी से। अब यहां पर ध्यान से देखिए, केसेस में देखिए, लेट अस सपोज let us say the circular loop, okay, and the circular loop is divided into say 4 equal parts. Now let us suppose that since you want to determine, मान लेते हैं कि यार करंट I फ्लो कर रहा है, let us suppose हमें सिर्फ आर्क AB का मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है। तो आपने न्यूमेरिकल्स में क्या देखना है? न्यूमेरिकल्स में सिर्फ ये देखना है कि गिवन सेक्शन सेंटर पे कितना एंगल सस्टेन कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, अब बेटा ये जो आर्क AB आपको दिखाई दे रही है, ये 1/4 ऑफ द सर्कल दिखाई दे रहा है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज मतलब π/2। ओके, तो जब सेक्शन AB को देखा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखेंगे आप? B will be K into I divided by R, K into I divided by R multiplied with π/2। Got it? बस ये देखना है कि आर्क ने सेंटर पे कितना एंगल सस्टेन किया। ओके, अब ध्यान से देखिए, अगर बेटा सेमी सर्कुलर आर्क देखते हैं, अगर हम आर्क ABC को देखते हैं, तो ये आर्क ABC कितना एंगल सस्टेन करेगा? साथ साथ कॉपी करते जाना, ठीक है? आर्क ABC एंगल पाई सस्टेन करेगा। आर्क ABC, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? K into I डिवाइडेड बाय R into पाई। गॉट इट? अगर सिंस आप आर्क ABCD को देखते हैं, आर्क ABCD को देखते हैं, इस पूरी आर्क को देखते हैं, तो पूरी आर्क ने सेंटर पे कितना एंगल सस्टेन किया? पूरी आर्क ने सेंटर पर इतना एंगल सस्टेन किया। ये कितना है? ये ABCD कितना है? 3/4 ऑफ द सर्कल। तो बेटा 3π/2 सस्टेन किया। आर्क ABCD की अगर बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? K into I डिवाइडेड बाय R into 3π/2। व्हाट है? ये सिंपल सा काम समझ आ गया? कॉपी कर लें, फिर न्यूमेरिकल सेक्शंस करते हैं। यस सर, बस ये याद रखें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए जैसे सर्कुलर लूप में सिखाया है, सिर्फ ये देखना है करंट कैसे फ्लो करना है। जैसे करंट एंटी क्लॉकवाइज में है, क्लॉकवाइज में, जैसे इस वाले एग्जांपल में करंट कैसे फ्लो कर रहा है? करंट क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो कर रहा है। आप देख रहे हैं इस लूप को, आप देख रहे हैं, लूप आपको प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड में दिखाई दे रहा है, तो आप हो गए ऑब्जर्वर, आप हो गए ऑब्जर्वर। करंट को देखिए, करंट कैसे फ्लो कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो करे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप एंड टुवर्ड्स द रीडर। आप देख रहे हैं तो आप ऑब्जर्वर हैं, आप रीडर हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। गॉट इट? अगर राइट हैंड रूल यूज करना है तो स्टूडेंट्स यहां पे राइट हैंड रूल को दूसरे तरीके से करते हैं। देखिए, रिस्ट को रखिए सेंटर मोस्ट पॉइंट पे, फिंगर्स को कर्ल कर लिए, तो हम क्या जो फिंगर्स की कर्लिंग है वो डायरेक्शन ऑफ करंट देगी, और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो थंब से डिफाइन होता है। समझ आ गई ये बात? ठीक है, वैसे आपको जो शॉर्टकट दे दिया वो आसान है। अब अगर ये करंट मान लो स्वेंस क्लॉकवाइज सेंस में होता है, ऐसे होता है क्लॉकवाइज, तब आप देख रहे हैं, आप हो गए ऑब्जर्वर, आपको लूप दिखाई दे रहा है प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड में, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड एंड इन द इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन दैट इज अवे फ्रॉम द रीडर। गॉट इट? ओके, चलिए अब न्यूमेरिकल्स करते हैं।
तो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होने वाले हैं, कुछ क्या बहुत सारे में होने वाले हैं, जिनमें लीनियर कंडक्टर्स भी एग्जिस्ट करेंगे और कर्व सेक्शंस भी एग्जिस्ट करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालना है मैं आपको वो सिखा रहा हूं। ठीक है, समझना, रिकॉल कर लेना केसेस। 2 केस बायट-सवर्ट्स लॉ में कराए थे। लॉन्ग कंडक्टर था, फिर इन्फाइनिटली लॉन्ग था, फिर सेमी इन्फाइनिटली लॉन्ग था। इन टोटल 5 हो गए थे। आज कर्व सेक्शंस हो गए हैं, सर्कुलर लूप हो गए हैं। इन टोटल 7 हो गए हैं। ठीक है, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ये सिस्टम है। ओके, ये जो लीनियर कंडक्टर्स हैं ये इन्फाइनिटली लॉन्ग है। द लीनियर कंडक्टर्स आर इनफाइनाइटली लॉन्ग। गॉट इट? O is the center and R is the radius. क्लियर? बेटा, इन क्वेश्चंस में जो डॉटेड लाइन हो वो सिर्फ रास्ता है, जो डार्क लाइन है वो कंडक्टर है। समझ आ गई बात? तो ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ये डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, तो ये सिर्फ मार्किंग है। लीनियर कंडक्टर ये वाला काउंट करना है, समझे? अब यहां पे लीनियर कंडक्टर यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये काउंट करना है। द लीनियर कंडक्टर्स आर इनफाइनिटली लॉन्ग, ओके, and carries the current, say I. क्वेश्चन है कैलकुलेट the magnetic field at the center O of the arc shape कंडक्टर। अब ध्यान से देखिए, डाटा में ये वाला एंगल 90 दे रखा है, डाटा में ये वाला एंगल 90 दे रखा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो करंट फ्लो कर रहा है मैं वो मार्क कर रहा हूं यहां पे, से I एंड से I। मैग्नेटिक फील्ड किधर निकालना है? सेंटर ऑफ द लूप पे निकालना है। ध्यान से देखिए, करना कैसे है बेटा, जितने सेक्शंस दिखाई दें उनको मार्क करना है। अब हमें यहां पर 2 लीनियर सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं और एक कर्व सेक्शन दिखाई दे रहा है। इन टोटल 3 सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, तो मार्क करते हैं ऑर्डर में। इसको, इस वाले लीनियर सेक्शन को फर्स्ट बोलते हैं, इस कर्व सेक्शन को सेकंड बोलते हैं, और यहां से लेकर यहां तक इसको थर्ड बोलते हैं। क्लियर? अब बेटा, तीनों का मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखते हैं, डायरेक्शन लिखते हैं, और लास्ट में फिर वेक्टर कैलकुलेशन करेंगे। समझ आ गई बात? क्वेश्चन कॉपी कर ले पहले। क्वेश्चन कॉपी कर लिया? Now, say B1 is the magnetic field due to this conductor, the linear conductor. बेटा, लीनियर कंडक्टर कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहां से स्टार्ट हो रहा है, आगे जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो ध्यान से देखिए, लीनियर कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है पॉइंट O पे। तो सबसे पहले केस आइडेंटिफाई करिए। तो बेटा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट A इस कंडक्टर के एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो बायट-सवर्ट लॉ में एक्सिस वाला काम समझाया था, जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट एक्सिस पे लाई करे तो मैग्नेटिक फील्ड होता है 0। तो बेटा, फर्स्ट कंडक्टर जो कि इनफाइनिटली लॉन्ग है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट कंडक्टर के एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसलिए इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट O पे 0 होगा। क्लियर हो गई बात? अब बेटा, कर्व सेक्शन को देखिए, कर्व सेक्शन दिखाई दे रहा है। ये कितना पार्ट दिखाई दे रहा है आपको सर्कल का? मुझे ये सर्कल का
3/4 दिखाई दे रहा है। कैसे पता? क्योंकि ये एंगल 90 है। अब ये एंगल 90 है तो ये वाला एंगल जिसको मार्क किया ये कितना हो गया? ये हो गया 3π/2। तो बेटा कर्व सेक्शन में सेंटर पे कितना एंगल सस्टेन किया? 3π/2। से B2 is the magnetic field due to the curved section. So it is K into say I divided by R into say 3π/2. ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। ओके, अब डायरेक्शन ध्यान से देखिए, करंट कैसे फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो गई? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप एंड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। सो इट विल बी परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये सिंपल सी बात समझ आ गई? आप कहां से स्टार्ट हो रही है? यहां से घूम के यहां तक आ रही है बस। फिर इसके बाद ये लीनियर कंडक्टर स्टार्ट हो गया। अब लीनियर कंडक्टर क्या करते हैं? लीनियर कंडक्टर का फिर से केस आइडेंटिफाई करिए। ये इनफाइनटली लॉन्ग है। अब ये एक एंड तो पता है, इस एक एंड के बिल्कुल सामने ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो ये हो गया सेमी इनफाइनटली लॉन्ग। बात समझ आ गई? और सेमी इनफाइनटली लॉन्ग का मैग्नेटिक फील्ड आपको सिखाया था, ये होता था K into I डिवाइडेड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात समझ आ गई? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? हाथ रखा, राइट हैंड रखा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, हाथ को घुमाया, जिस साइड पे थंब है फिंगर्स को देख लिया, कैसे आ रही है फिंगर्स? बाहर की तरफ। सो मैग्नेटिक फील्ड ये B3 कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, और डायरेक्शन हो गया परपेंडिकुलर आउटवर्ड। गॉट इट? अब ध्यान से देख लो बेटा, फर्स्ट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड हो गया 0, सेकंड कंडक्टर का हो गया डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड, थर्ड कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड हो गया डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड्स जिनकी वैल्यूज हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे है। तो अब निकालना है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ गई बात? ओके, क्वेश्चन कॉपी हो गया होगा, मैं मिटा रहा हूं नया। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कुछ न्यूमेरिकल्स दिखाए थे, सिखाए थे, उनमें मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन डिफाइन करनी है। नाउ आई एम सेइंग दैट वेक्टर B इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर B1, वेक्टर B2 एंड वेक्टर B3। क्लियर? अब इसके बाद करनी है कैलकुलेशन। नाउ दिस B इज रिटन एज, बेटा B1 तो था 0, अब B1 और B2 and B3 they are in the same direction. Whenever the vectors are in the same direction, then to calculate their resultant, always you have to do the addition of the magnitudes of the two vectors. Okay? और जो resultant का direction है वो उन्हीं के along आता है। So it is written as B, बेटा B लिख रहे हैं तो एरो का साइन नहीं लगा रहे, magnitude निकाल रहे हैं। B2 is K into say I divided by R into say 3π/2 प्लस B3 की बात करें, इट इज से K into say I divided by say R. So this B in magnitude is written as say K into say I divided by R. Ki by R कॉमन हो गया, it is say 3π/2 plus 1. 3π/2 plus 1. ओके, तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B is perpendicular to the plane of the conducting systems and outward. क्यों? क्योंकि सर वेक्टर B2 और वेक्टर B3 दोनों आउटवर्ड थे, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर B आएगा उसका डायरेक्शन भी आउटवर्ड आएगा। समझ आ गई बात? जल्दी से कॉपी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बेटा अपनी बुक को यूज करिए, अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स जो इस कैटेगरी के हैं उनको सबको प्रैक्टिस करिए। बस ये याद रखिए करना कैसे है, जितने भी सेक्शंस आपको दिखाई दें सबकी नंबरिंग करनी है, सबके इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड्स की बात करनी है। ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी, सिर्फ आपको ये सोचना होगा किस केस को बिलोंग करता है। केस के बारे में सोचिए, जिस केस को बिलोंग करता है उसका रिजल्ट फिट करिए, फिर डायरेक्शन डिफाइन करिए, लास्ट में वेक्टर कैलकुलेशन करिए। बात समझ आ गई? So students, it is all for today. The rest we will discuss in the next lecture.